پروگرام لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی خواتین و حضرات یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور موضوع گفتگو میرا وہی رہے گا جو گزشتہ منگل کو تھا. گزشتہ منگل کو میں نے بلوچستان پہ پروگرام کیا تھا اور آج بلوچستان کے اوپر ہی پروگرام کر رہا ہوں. بلوچستان ہی میرا سبجیکٹ ہے, حصہ دوم, اور میزبان جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں یوسف مستی خان صاحب ہمارے مہمان تھے جو نائب صدر ہیں ورکرز پارٹی پاکستان کے, اور گفتگو چونکہ تشنا رہ گئی تھی. مجھے آپ کی ای میلز بھی ملی تھیں, بہت سے دوستوں نے مجھے ٹیکسٹ میسیجز بھی بھیجے, فون کالز بھی کیا اور یہ کہا کہ گفتگو تشنا رہ گئی, کئی سوالوں کے جواب نہیں ملے. کئی میرے اوورسیز کے دوست جن کو میں نے یہ پروگرام یوٹیوب کے ذریعے ان کے لنک بھیجے تھے, انہوں نے بھی مجھ سے کچھ سوالات اٹھائے ایسے کہ یہ جوابات تشنا ہیں. تو لہٰذا آج بلوچستان حصہ دوم اور میرے مہمان ہیں پاکستان ورکرز پارٹی کے نائب صدر جناب یوسف مستی خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب, ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی اور بہت سارے دوستوں نے یہ ای میلز بھی بھیجے, خطوط بھی لکھے اور فون بھی کیے کہ بھئی بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کے جوابات نہیں تھے, اور آپ جس طرح سے بلوچستان اور اس کی ہسٹری اور ہم اکیڈمیکلی سمجھنا چاہ رہے تھے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بڑی انلائٹننگ تھیں. 99% ہمارے ویورز کو یہ نہیں پتا تھا کہ بلوچستان بحیثیت ایک آزاد ریاست کے پاکستان میں آیا, بلکہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی چچا کے گھر پہ جھنڈا لگا رہتا تھا بلوچستان کے ریپرزنٹیٹیو یا ایمبیسڈر کے طور پہ مارچ 1948 تک. تو یہ ایک کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم صورتحال کو سمجھنے میں ہماری مدد مل رہی ہے. یوسف صاحب, ایک سوال جو آیا ہمارے ناظرین کی طرف سے وہی آیا کہ اس ساری گفتگو میں بلوچ سرداروں کا کہیں کوئی کردار جو ہے معین نہیں ہو سکا. وہ اس روشنی میں کہ بہت سارے ہمارے ویورز نے یہ لکھا ہمیں کہ حکومت جو ہے ان کو رائلٹیز بھی دیتی رہی, ان کو پیسے بھی دیتی رہی, امداد کی مد میں بھی, NFC میں بھی, لیکن ان سرداروں نے اپنی کٹی میں اپنی پاکٹس میں یہ پیسے ڈال کے امیر سے امیر تک ہوتے گئے اور ایک عام بلوچ کو اس سے استفادہ کرنے کا موقع دیا ہی نہیں. تو محرومی تو بلوچ کی ہے مگر زیادتی سردار نے کی. جی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے سرداری نظام کو تو میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, کیونکہ میں خود اس سوچ کا مالک ہوں کہ جی سرداری نظام جو ہے ایک اچھا فرسودہ نظام ہے, اور ایک ماڈرن اسٹیٹ کے لیے تو ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹک ریپبلک کے لیے تو زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی سرداروں کو رائلٹی ملتا رہا, وہ تو آپ کا جو پیکیج ابھی آیا ہے جو نیشنل اسمبلی نے پیکیج دیا بلوچستان کے آغاز حقوق بلوچستان سے, اور بلوچستان پیکیج پہلے دیا پھر آغاز حقوق بلوچستان اس کو کہا, تو اس کے اندر وہ خود مانتے ہیں کہ 53 سے لے کر ابھی تک ہم نے کوئی رائلٹی بلوچستان کو نہیں دی, اور ہم نے 126 بلین روپیز جو ہیں وہ ڈیو ہیں بلوچستان کو دینے ہیں ہم نے, اور وہ ودن اے پیریڈ آف 12 ایئرز ہم دیں گے. اچھا, یہ خود مگر یہ جیسے نواب اکبر بھٹی وغیرہ کو گیس کی رائلٹی یا کچھ حصہ ملتا تھا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, تو اس میں سے بھی کچھ خرچ نہیں کیا انہوں نے اپنے عوام؟ نہیں جی, وہ گیس کی رائلٹی تو انہوں نے سرنڈر کر دی تھی بلوچستان کو, صوبے کو, لیکن جو رینٹ تھا زمین کا رینٹ جو ہے وہ ملتا تھا ان کو, کیونکہ وہ اس کی زمین گورنمنٹ نے لے لی تھی. ٹھیک ہے, وہاں جہاں ویلز ہیں وہ نواب صاحب کی زمینیں تھیں, وہ اس کو دیتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیان آیا تھا مشرف کے زمانے میں کہ یہ جو ہیں اتنی زمین ہمارے پاس نہیں ہے جتنا وہ کلیم کرتے ہیں اور جتنا وہ کرایہ لیتے رہے. تو اکبر بکٹی نے پھر اس کو چیلنج کیا, کہا کہ جی ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ ناپو, جو زمین آپ کے پاس ہے اس کو ناپو, جتنا ہے اگر میرے سے پلے نکلتا ہے تو میں واپس کرتا ہوں, اگر آپ کے پلے نکلے تو مجھے واپس دے دینا. وہ بھی خطیر رقم ہوگی جو کہ دی جاتی ہوگی. کتنا ایگریمنٹ کیا تھا کمپنی اور انہوں نے یہ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہوا کہ پھر اس کو دوبارہ جب ناپا گیا تو پتہ پڑا کہ اکبر بکٹی کو جو ابھی تک کرایہ ملتا رہا ہے وہ 6000 ایکڑ کا. اچھا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے جو ٹرائب کی جو زمین ہے وہ 10,000 ایکڑ ہے جو گورنمنٹ کے پاس ہے. پھر اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ مجھے 4000 کے پیسے اور دو. ٹھیک ہے, جو ہے تو رائلٹی تو انہوں نے سرنڈر کر دی تھی بلوچستان گورنمنٹ کو. اچھا, دیگر سردار جو تھے ویلیٹ پہ جو کرایہ ہے سب جو وہ ملتا ہے. وہ صرف سرداروں کو نہیں ملتا ہے, جہاں بھی پنجاب میں بھی اگر کسی کی زمین سے گیس نکلا ہے تو اس کو کرایہ ملتا ہے. اچھا, تو مطلب NFC میں بھی بلوچستان کا کچھ NFC تو جی دیکھیں, بلوچستان کو تو 1970 میں آ کے صوبائی حیثیت ملی. ٹھیک ہے نا, پہلے تو 1 یونٹ تھا
उसमें तो जो 1 यूनिट के ज़माने में जो NFC अवार्ड था उसका बंगाल बड़ा वो था कि जी इसको आप पॉपुलेशन के बुनियाद पर बांटे। उस वक्त हम कहते थे, वेस्ट पाकिस्तान कहता था कि नहीं, ये जो है एग्रीकल्चर बेस पे या रकबे पे, इलाके रकबे पे तो हम इसमें तो बांटेंगे। बलूचिस्तान का ग्रेटर शेयर होगा फिर। आप नहीं, 1 यूनिट था ना जी, 1 यूनिट था। तो इसमें हम रकबे के बेस पे लेंगे, तो रकबे के बेस पे फिर वो रखा गया और रकबे के बेस पे उसको बांटते रहे, और जाहिर है 1 यूनिट था तो उसमें फिर वो सारा सेंटर को जाता था, सेंटर सूबों को देता नहीं, सियासी नीचे पार्टियां देता क्या नहीं। कर रही थी वहाँ पे? असेंबलीज तो मौजूद थी, जब भी अभी भी बलूचिस्तान में असेंबलीज बनी है, बल्कि एक आध को छोड़ के सभी मिनिस्टर या मुशीर हैं, ये लोग कुछ नहीं करते। बहरहाल एक वोटिंग होती है, वोटिंग से आते हैं असेंबली को, में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बलोच अवाम को करते हैं, तो इनका क्या रोल था? उस जमाने में तो वेस्ट पाकिस्तान असेंबली थी ना जी, जी जी। वेस्ट पाकिस्तान असेंबली के हवाले से लोग आते थे, और उस 1 यूनिट को ये सारे सरदार, जिसको ये अभी देखो यहाँ पर एक अजीब सा तस्वुर है कि सरदार जो है सिर्फ 3 उनके नजर में आते हैं पाकिस्तान के अवाम के, एक अताउल्ला मेंगल है, खैर बख्श मरी है, या अकबर खान बुगटी है। ये वो 3 सरदार हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और हमेशा पीपल्स राइट्स के लिए, अपने लोगों के राइट्स के लिए लड़ते रहे। तो ये उस जमाने में तो 1 यूनिट के खिलाफ लड़े थे, और अकबर बुगटी को कैद कर दिया था कत्ल के केस में अयूब खान ने, वो तो कैद था। इसी तरह मीर गौस बख्श बीजंजो को भी 1 यूनिट तोड़ो के हवाले से 14 साल कैद आई हुई थी। सरदार अताउल्ला भी जेल में था। ये सारे उस पूरे पीरियड में जेल में थे और स्ट्रगल एक कर रहे थे, पार्लिमानी और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल नैब कर रही थी। अब जब 70 में 1 यूनिट टूटा, 1 यूनिट टूटने के बाद फिर हुआ ये कि जो NFC अवार्ड है, जो 3rd NFC अवार्ड भुट्टो साहब ने, नहीं 6th NFC अवार्ड भुट्टो साहब ने फिर दोबारा उसको रीथिंक किया, और उसने उस NFC अवार्ड को पॉपुलेशन के बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन रखा। ठीक है, तो जाहिर है पॉपुलेशन पंजाब का ज्यादा था। जो बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ हुई है वो यही है कि पॉपुलेशन के बुनियाद पर उसको रख दिया। अब पॉपुलेशन के बुनियाद पर जो है वो पंजाब को ज्यादा था। फिर बलोच लड़ते रहे, बलोच नहीं सिंधी भी लड़ता रहा, छोटे कौमियतें लड़ते रहे कि जी इसको पॉपुलेशन की बुनियाद पे मत करो, इसको जो है पॉवर्टी के बुनियाद पर, एरिया के बुनियाद पर, जो अंडर डेवलपमेंट के बुनियाद पर इसको बांटो, ताकि इक्वल उसका डेवलपमेंट ये जो इक्वल हो जाए। कौमियत की आपने बात, पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये कहा था कि प्रोविंसेस जो है, मैंने आपसे ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये तो कल्चरल और वो सब ज़बान की बुनियाद पे, लेकिन आपने कहा नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, जब भी तो उनकी सब डिविजन्स का भी आ रहा है। मैंने कहा ये उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सोचते हैं, सोचते ये समझते हैं, सोचते हैं। हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि मैं एक बात कौमियत के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि ये पूरी ये जो बुनियाद थी पाकिस्तान मूवमेंट की, ये तो 2 कौमी नज़रिए पे थी ना, यानी 2 कौमें बस थी, मुसलमान या हिंदू, और उसी पे कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने तहरीक चलाई, उसी पर फिर ये पाकिस्तान वगैरह, तो कौम तो एक हुई। अब इसके जो यूनिट्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो प्रोविंशियल उनकी जो तहजीबें, ज़बानें, उनको तो हम कर सकते हैं, मगर क्या इनको भी हम कौम या कौमियत कह सकते हैं? देखें जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो 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 स्ट्रगल थी, उसको अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, वो विद इन दी इंडियन फ्रेमवर्क माइनॉरिटी के लिए राइट्स की स्ट्रगल थी। और उसमें जब ये मसला आगे बढ़ा तो उन्होंने 2 कौमी नजरिए को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हल समझा इंडिया का। ठीक है, और उसमें कायद आज़म का एक स्टेटमेंट है कि जी हिंदुस्तान के मुसलमानों में अब वो सारे लवाजमात आ गए हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान अलग कौम बन गया है हिंदुस्तान के हवाले से। अब मसला ये हो गया कि पाकिस्तान का तो डिमांड ही नहीं था उस जमाने में। ठीक है, और ये जितने भी मुसलमान कौम के लोग थे जो अभी मुस्लिम कौमियत का नारा दे रहे हैं और कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से बना था पाकिस्तान, ये उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुखालिफ थे, सबके सब। देवबंद का भी मुखालिफ थे, जमात इस्लामी भी मुखालिफ थी, और ये सब के सब कायद आज़म के मुखालिफ थे। बल्कि कायद आज़म को तो इन्होंने दहरिया और काफिर भी करार दिया था उस वक्त। ठीक है, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 40 के रेजोल्यूशन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, उसमें भी पाकिस्तान का लफ्ज नहीं है। ठीक है, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो यही कहता है कि जी ये एरिया जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, उनको इस तरह समझा जाए कि उसके और स्टेट्स फॉर्मेशन हो उसकी, और उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो ऑटोनोमस एंड सॉवरेन होंगे। फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि 23 तारीख 1940 को, 23 मार्च को तो रेजोल्यूशन पास होता है। 26 मार्च को तारा सिंह के डेलीगेशन से जब मुलाकात होती है तो वो कहता है कि जी हमारे ग्रुप में आप आ जाएं।
ठीक है। हमारे ग्रुप में आओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जब इन स्टेट्स का बनेगा और फिर मरकज का बनेगा, तो फिर अगर आप उसको नहीं पसंद करते तो आपको ये राइट होगा टू ऑप्ट आउट ऑफ दैट ग्रुप थ्रू अ रेफरेंडम। अच्छा, ठीक है, तो ये तो वाजे था 1940 के। समझ गया। अच्छा, वापस आ रहा हूँ बलूचिस्तान पे। वापस यूँ आ रहा हूँ कि चलिए इस वक्त भी, जैसे इस वक्त भी तो एक असेंबली है बलूचिस्तान में, चीफ मिनिस्टर भी है बलूचिस्तान का ही है, और इस वक्त भी असेंबली में मेंबर्स हैं जो आवाम के वोट लेके आए। तो ये कुछ नहीं कर रहे जदोजहद बलूचिस्तान के लिए, जो वहाँ पे उन पॉकेट्स को करनी पड़ रही है जिनकी वजह से कि आज हर आदमी जो है कंसर्न हो गया है। देखें जी, इसके लिए पहले तो आप जाएं 70 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और वन मैन वन वोट के बुनियाद पर पहली मरतबा इलेक्शंस होते हैं जिसमें नैब मेजॉरिटी ले लेती है बलूचिस्तान में और सूबा सरहद में। ठीक है, अब नैब ले लेती है मेजॉरिटी, अब झगड़ा इधर ही आ जाता है कि एटॉनमी कौन से सब्जेक्ट्स हम डील करेंगे, कौन सा सेंटर करेगा, क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट है, किसी भी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन में दो लिस्ट होते हैं ना, एक फेडरल लिस्ट होता है, ठीक है ना, और एक प्रोविंशियल लिस्ट होता है। ठीक है, थर्ड लिस्ट नहीं होता कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब कंकरेंट लिस्ट का क्या जादू था? उसका जादू ये था कि वो सब्जेक्ट्स जो मरकज भी डील करता है, जैसे एजुकेशन है या हेल्थ है, और सूबों के पास भी वो मिनिस्ट्रियां हैं, तो ये कंकरेंट सब्जेक्ट्स में उन्होंने लिया, तो वो कंकरेंट लिस्ट में ले लिया इनको, और लेकिन प्रिवेल करेगा फेडरेशन का, मरकज का कानून। तो इसी तरह उनके पास तो वो नहीं थे, तो नैब यही लड़ती रही कि भी आप कंकरेंट लिस्ट को, अब आपने पहले कहा था 10 साल बाद करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये मसले खराब हो रहे हैं, आप इसको अभी से करें, कंकरेंट लिस्ट को दे दें। लेकिन वो नहीं हुआ तो उल्टा वो बलूचिस्तान की हुकूमत ही डिसॉल्व कर दी गई, फिर जेलों में चले गए, फिर गद्दार बन गए। ठीक है, अच्छा, फिर जो असेंबली आई भुट्टो के जमाने में, वो कौन सी थी? वो डिसॉल्व कर दी ना, डिसॉल्व कर दी उसको। गवर्नर रूल क्या, माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई जाम लसबेला की। जाम साहब और लसबेला की मेजॉरिटी तो जेल में चली गई। जाम साहब और लसबेला भी तो बलूच आवाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ, लेकिन तो जब माइनॉरिटी जब आवाज नहीं उठाई, नहीं, मतलब ये कि इस तरह तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी सरदार जो है, फौज कशी तो हुई थी, मेजॉरिटी सरदार जो है वो हमेशा सेंटर के साथ रहे हैं। ये 3 सरदार हैं जो पॉलिटिकली नैब के हवाले से, दूसरे हवालों से स्ट्रगल करते रहे कि साहब ये तो ये इतने पावरफुल आप समझते हैं कि ये एक सूबा अलग लेके और मुल्क बना दें? इनकी फॉलोइंग इतनी है? जी देखें, ये अगर पाकिस्तान बनने से पहले वो 11 अगस्त को उनकी आज़ादी का ऐलान होता है तो जाहिर है, और उससे पहले भी खान ऑफ कलात और 2 सूबे थे हिंदुस्तान में। कलात स्टेट तो सूबा नहीं था, उसकी तो हैसियत ही अलग थी, अंडर एग्रीमेंट्स और चार्टर्स वो अंग्रेज के साथ डील करते थे। लेकिन नेपाल एंड कलात आप देख लें, ये 2 ऐसी थी जिनको 21 तोपों की सलामी मिलती थी, और जिस वक्त अंग्रेज जा रहा था तो ये ऑप्शन सिर्फ इन 2 को मिला कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। बाकी किसी रियासत को नहीं, बाकी रियासतों को यही था कि जी हिंदुस्तान में जाना चाहते हो या पाकिस्तान में, लेकिन इन 2 रियासतों को यह था कि जी आज़ाद होना चाहते हो या आप इनमें से किसी को ऑप्ट करते हो। ठीक है, नेपाल ने ऑप्ट किया आज़ादी का, वो आज़ाद हो गया और अभी तक आज़ाद है, आज तक आज़ाद है। बलूचिस्तान ने ऑप्ट किया आज़ादी का, तो वो आज़ाद नहीं हो सका, क्योंकि उसमें फिर वो साजिशें हुई, फिर आया, फिर बलोच ने कोशिश की कि तो विद इन द फ्रेमवर्क हम इसको सियासत को अपनी करते रहें, लेकिन उनको छोड़ा नहीं, और नतीजा ये निकला कि MRD की जब तहरीक चल रही थी 83 में, भुट्टो साहब ने इतनी मार हमको मारी, लेकिन उसके बावजूद भी हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो गए ज़िया-उल-हक के मार्शल लॉ के खिलाफ। ठीक है, और हमने उस वक्त भी ये मुतालबा रखा, देखें जी आप एटॉनमी का इशू सेटल करें हमारे साथ, आज हम एटॉनमी मांग रहे हैं, कल लोग आपसे आज़ादी मांगेंगे बलूचिस्तान के। इस तरह हमारे नेच पहुंच गया। मुझे याद है कि एक MRD में हमने ये कंडीशन जब रखा कि जी हमारे साथ एटॉनमी तय करें, उसके बाद हम MRD में शामिल होते हैं, वरना हम स्ट्रगल में आपके साथ हैं, जेलों में हम जाते रहे उनके लिए। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरूम ने एक कमेटी बनी नवाबजादा नसरुल्लाह खान के हवाले से, और फतेह अली खान के घर में हमारी मीटिंग हुई। मैं और कुट्टी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान नेशनल पार्टी को, BM कुट्टी साहब। तो जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, तो नवाबजादा ने कहा कि जी वली खान साहब का कहना यह है कि ये एटॉनमी का इशू जो है ये हमारा है, ये क्यों जिद कर रहे हैं कि MRD माने इसको। ठीक है,